तो देखो ये आलमंड भी पुट करते हैं, मतलब बादाम जो होता है ना, बादाम। यहाँ देखो ये कोई गेम है, और देखो भाई मुझे स्ट्रीट खाते हुए अब कुछ ऐसा लगता है। सॉरी फॉर द डिले। Okay, thank you. He's Bob. He's Yeah. my friend. Last So- night he gave me a chocolate bar. Yeah, Yeah. thanks for that. Yeah, I really welcome. enjoy it. Hi, Ankit. We'll be taking the city. Yes. Okay. So we will go on the tour today. Yeah. We start at 9:30. Yeah, Okay. Right now. Yeah. ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियतनाम में पढ़ती है, इंग्लिश मेजर है इसका। सो मेरे को ये टूर पे लेके चल रही है। What typically food is? It's noodle and inside have fish. Okay. And some restaurant will add the tofu. Okay. Yeah, inside, and they will add some vegetable. Okay. Inside. Yeah. So I was asking that Thai food. Yeah. The first is different with this. Okay. Yes. First is some type of noodle. Okay. Yeah, it's different. And tofu. in tofu, just put it on for like a topping. Okay. Yeah. The noodle is made from rice. Okay. Yeah. तो ये बता रही है जो इन लोग का नूडल्स होता है वो मोस्टली राइस से ही बनता है यहाँ पे, जैसे अपने मैदा का बनता है ना इंडिया में। हाउ यू से हेलो इन वियतनामी? हेलो। Hello, Vietnamese. या Xin chào. सिन चाओ। Vietnam. ओके। Yes. एंड हाउ यू से थैंक यू? कम ऑन। Cảm ơn. कम ऑन। Cảm ओके। ơn. तो इन लोग थैंक यू को कम ऑन बोलते हैं। Yeah. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक कम ऑन हम अपने इंग्लिश में ऐसे ही नॉर्मली बोलते हैं, बट यहाँ पे थैंक यू बोला जाता है। यू लाइक वेजिटेरियन फूड? I can, but I don't like too much. Okay. I can't even. I don't like too much. India is the like vegetarian. Yeah, they like vegetarian food. In around 25 to 30% of the population are vegetarian. But More than that. in Vietnam, the most people always eat meat. Yeah. And it's made from pork. Pork, Beef. beef. Yeah. Okay. So, but we still have vegetarian food. Have Okay. many types Yeah, of vegetarian. yes. Yeah, and vegan food as well. I haven't tried it, but I just try a little time because it's very hard to make a vegetarian food in Vietnam because we make from vegetable, and we modify some vegetable is suitable for this state of this Okay. food, and so I see many KOL like influencer in TikTok or in Facebook. They make a vegetarian food is very difficult and have many ways to do it. But in India, it is very easy to make vegetarian. There are tons of dishes, and it's very easy. Some dishes can be prepared in less than 5 minutes. You make it? Yeah, in less than 5 minutes, you can make a vegetarian food. Oh really? Yeah. I haven't tried it because I haven't tried it. वियतनाम में आदमी लोग वेजिटेरियन फूड थोड़ा कम प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है इन लोग को बनाने में। बट इंडिया में उल्टा है, वेजिटेरियन फूड तुरंत बन जाता है। तो एक डिफरेंट मतलब थॉट प्रोसेस है इन लोग का। और ये अपने कोई लेक पे आए हैं, देखो। तो ये बता रही थी जैसे यहाँ पे अभी तक बहुत लॉन्ग टाइम से इन लोग की कोई किंग नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं और थोड़े क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। मतलब इन लोगों का कोई पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं है, बस दे फॉलो बुद्धिज़्म। सो इनका वो कहना, एक कोई टेंपल है किंग का, वो आ रहे हैं। मतलब ये कोई भगवान का टेंपल नहीं है, एक किंग का टेंपल है। वियतनाम का करेंसी मैं आपको बताऊंगा, मतलब ये मिलियंस में और थाउजेंड्स में रहते हैं। तो सबसे बेस्ट वे है अगर आपको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो लास्ट का 30 हटा दो और इंटू 3.3 या फिर समटाइम्स 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बस लाइक जैसे अगर आपका 1 मिलियन का है तो उससे 30 हटा दो और इंटू 3.3 कर दो, तो 3300 का एक नोट आता है और 500 का आएगा 1600 के लगभग का। तो ऐसा कुछ है। मतलब ये पूछ रही है कि अपने इंडिया में वर्शिप सेंटर है कि नहीं। मतलब देयर आर प्लेंटी ऑफ सेंटर इन टेम्पल and people follow different religion over there. We have Hinduism, Buddhism, Yes. and then we have Christianity, then we have Sikhs, Yeah. then we have Zoroastrian. Oh So yes. yeah. So कुछ ही ऐसा है। You can see the offering inside here. Okay. So ये भी अपने आए हैं, एक टेम्पल आए हैं। तो ये जो लेक है ना, यहाँ पे 2 जायंट टर्टल रहते थे, तो उनका
मतलब डिस्प्ले करके रखा हुआ है। सी ये 2 जायंट टर्टल है। Offering worship art center. So do you burn votive paper? Yeah, You do? Yeah, we do. Wow. It's the same with Yeah, the Vietnamese same people. Vietnamese culture. Yeah. You will be amazed to know that our history and your history is quite similar. You were ruled by the French people, we were colonized by the Britishers. Yeah. So Ho Chi Minh has fight for your country, and Yeah. Mahatma Gandhi has fight for our country. So it's very similar. When you have started the Doi Moi revolution in 1986, we also started our new economic policy in 1991. So it's very Vietnam and India are quite very similar with regard to history. Yeah, that's And right. your country is growing at a pace of 7% GDP. अभी मैं टेम्पल से आया हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे 2 टाइप से वर्शिप किया जाता है। पहले जो किंग के प्रोटेक्टर होते हैं उन्हें वर्शिप किया जाता है। उसके बाद जो अगर आप नेक्स्ट रूम में जाओगे तो वो किंग बैठे हुए रहते हैं, फिर उनको वर्शिप किया जाता है। और आप अमेज होंगे अभी भी मतलब यहाँ वियतनामीज पीपल लोग जो है किंग को आके रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था वियतनाम को प्रोटेक्ट करने में और वियतनाम को डेवलप करने में उस टाइम में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। आई वॉज सेइंग दैट मेनी ऑफ द शॉप्स आर रन बाई वुमेन, नॉट मैन। Yeah. So what is the significance like? The most people selling is a girl. Yeah, Yeah, you mean that why the girl is selling and no, you can see the man Yeah, selling. yeah. Right? Yeah, because the most in Vietnam is just for the girl selling because we can use the money and take the money and the girl can how to use the money. okay. Yeah, and the girls will be more stronger than Okay. when we're talking with the guys, Yeah. the guests, and some guests will very angry or something like this. Okay. The girl will be angry more than and strong than the boy. Okay. Yeah. तो इसका कहना है कि मोस्ट ऑफ द जो शॉप मतलब वुमेन लोग चलाती है, इसका मानना है इंडिया के जैसे सिमिलर वो है कि लड़की लोग ज़्यादा अच्छा से रुपया मैनेज कर पाएगी और लड़के लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके कारण इन लोग भी जो शॉप्स रन होता है, मनी जो मैनेजमेंट होता है वो गर्ल्स करती है और वुमेन। और एक बात इसने बताया कि जो भारी काम होता है, जो स्ट्रॉन्ग काम होते हैं लाइक फॉर इन द कंस्ट्रक्शन और माइनिंग, तो वहाँ पे आदमी लोग ज़्यादा रहते हैं और वहाँ चले जाते हैं। और जो शॉप्स जब रन होता है, देखो जैसे ये दादी माँ भी है, ये देखो अपने शॉप चला रही है। तो मोस्ट ऑफ द जो लड़की लोग होती है वो शॉप्स चलाती है और जो स्ट्रॉन्ग काम होते हैं वो मैन। ट्रेडिशनल रिक्शा, Yeah, it's a motorbike in the past of Vietnamese people. Yeah, we most use like this in the past. ओके। सो जो पहले के जो वियतनामीज जो पीपल थे वो इस टाइप का रिक्शा यूज़ करते थे और अभी भी है। जैसे अपना कोलकाता में हैंड रिक्शा है ना, ग्रीन टी सेल कर रही है और ऐसा होता है। ये कोई ड्रिंक नहीं है, गलत वे में मत लेना, ये ग्रीन टी कहते हैं। मिल्क टी? Yes, we can, but the green tea is just for the healthy reason, for healthy reason. the people they They like like yes. green tea. Yes, but we have milk tea too. Too, The milk okay. tea and the green tea is different. Okay, yeah, I know different that, type. yeah. Yes. तो यहाँ अब ये जैसे अपना इंडिया में दूध चाय जो मिल्क टी होता है वो ज़्यादा चलता है, वियतनाम में उल्टा है। यहाँ हर जगह आपको ग्रीन टी मिलेगा। हर नुक्कड़, जैसे अपने नुक्कड़ में रहता है ना फुटपाथ में, यहाँ पे हर जगह आपको ग्रीन टी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा ग्रीन टी प्रेफर करते हैं और मिल्क टी बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन। तो ये बोल रही है, मैंने इससे पूछा कि आई हैवंट, मतलब मुझे कोई मोटे आदमी दिखे नहीं। तो ये बोली वियतनामीज आर छोटे होते थोड़े कद में, मतलब दे आर इन स्मॉल इन हाइट, दैट्स वाई मतलब वो ज़्यादा फैट नहीं होते और अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं वो लोग वियतनामी। तो इसलिए आपको कोई मोटे पीपल नहीं बात मानना पड़ेगा। मैं हनोई के हर मतलब बहुत सारे रोड में घूम गया, मतलब वॉक कर लिया हूँ। यहाँ पे आपको एक भी पोर्ट होल्स देखने को नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप अपने मुंबई में ही देखोगे, मतलब हर रोड में 100 से ज़्यादा आपको पोर्ट होल्स मिलेंगे, बट यहाँ एक भी नहीं मुझे मिला अभी तक। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये एक कोई कैफ़े में मुझे लाई है। सो इसने ऑर्डर कर दिया अपने लिए एक कॉफ़ी। मैं तो एक लूँगा नहीं, तो मैं नॉर्मल से एक कॉफ़ी ऑर्डर किया हूँ। तो लेट्स सी कैसा टेस्ट होता है। और देखो ऐसे छोटे छोटे टूल्स होते हैं, उसमें बैठते हैं अपने, और यहाँ पे प्रिपरेशन। सो ये इनका देखो एक कॉफ़ी है, कुछ ऐसा होता है। एक कॉफ़ी cacao and egg. ओके। Yeah. तो देखो ये आलमंड भी पुट करते हैं, मतलब बादाम जो होता है ना, बादाम के छोटे छोटे स्लाइसेस है, उसको भी पुट करके रखे। और ये देखो कुछ ऐसा पेड़ दिखता है, ये एक कॉफ़ी। ये जो
we often mix it like ओके this. सो मिक्स करने के बाद ये Yeah. ड्रिंक करते हैं, And काफ़ी in- थिक होता है। तो 500 जो इनका सबसे हाईयर है, उसके बाद 200 है और फिर 100 है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप 30 लास्ट की जो 30 है उसको हटा देना और इंटू 3 या फिर 3.3 से जैसा आपको एक्सचेंज रेट मिलेगा इंटू मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आपका इंडियन रुपीज़ में निकल जाएगा। ये देखो स्टिकी राइस है और लोग ऐसा खाते हैं, वेजिटेरियन है। तो आपको जैसा कि आपने बस देखा है यहाँ पे ऑल ओवर वियतनाम कोई भी नॉन एसी बस नहीं चलता है। मतलब अगर आप स्लीपर बस भी लोगे या नॉर्मल बस भी लोगे या फिर लिमोजिन मिलेगा आपको, मतलब जो छोटे बसेज होते हैं, और बड़े बसेज जो भी होंगे नॉन एसी कोई भी नहीं मिलेगा। वो जो भी वियतनाम में सब एसी बसेज हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है वियतनाम में। वियतनाम का जो स्कूल का जो है 1 to 5 आप प्राइमरी स्कूल होते हैं और 6 to जो 9 होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, और फिर 10, 11, 12 जो होता है वो हाई स्कूल होता है। तो सिमिलर टू इंडिया ही है। और फिर ये जैसे कि 4 साल के लिए इसने इंग्लिश में मेजर लिया, तो इनका 4 साल का यूनिवर्सिटी ऑफ वियतनाम में ये पढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ है, मतलब सिमिलर टू इंडिया ही है। जो स्कूल जो एजुकेशन कल्चर है, जो एजुकेशन रेगुलेशंस है, वो मोस्टली सिमिलर टू इंडिया ही है। सो देखो ये जैसे अपने ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, यहाँ पे भी ग्रीन वेजिटेबल्स काफ़ी खाते हैं आदमी लोग, और ये ट्रेडिशनल वियतनामी सेट है। इवन जो सूप्स होते हैं या नूडल्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स एज साइड डिश रखते हैं और खाते हैं। सो अभी मुझे ये हैंगमाई एक स्ट्रीट है वहाँ लेके जा रही है, और ये बता रही है कि वहाँ की हैलोवीन की डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और कल जैसे कि हैलोवीन है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन हो रहा है। तो ये मुझे वहाँ हैंगमाई की स्ट्रीट है हनोई में, वहाँ लेके जा रही है। ये जैसे कि मुझे बता रही कि जो सामने आप देख रहे हो वो ट्रेन स्ट्रीट है। तो वो शाम को काफ़ी, रात को अगर आओगे तो काफ़ी एक टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि वहाँ से ट्रेन जाती रहती है और ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स है। तो सेम टू एज अ मैकलोंग, जो मैकलोंग रेलवे मार्केट है थाईलैंड में, वैसा ही है। और ऐसा कुछ खास है नहीं। तो वो एक सिर्फ ट्रेन को देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं, और अपने पास इतना अच्छा चीज़ है, जम्मू कश्मीर है। अपने को टूरिज़्म काफ़ी बड़ा लेवल पे डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वियतनाम में देखोगे इतने फॉरेनर्स आते हैं, इतने मतलब, और प्रोसेस भी काफ़ी इजी है। और मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, अभी तक तो मुझे कोई ख़राब बैड एक्सपीरियंस मिला नहीं है। और ऐसे ही टूरिज़्म डेवलप होगा, इंडिया को भी डेवलप करना है। ये बता रही है जैसे कि अपने अचार होते हैं ना, यहाँ पे आलू के भी अचार मिलते हैं। तो ये बता रही है, मैं काफ़ी शौक था क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया आलू के अचार, मतलब पोटैटो के जो पिकल होते हैं मैंने कभी देखा भी नहीं है। और ये बता रही कि वियतनाम में काफ़ी ज़्यादा चलता है। सो गाइज आप देख सकते हो, अभी मैं आ गया हूँ हैंगमाई स्ट्रीट। ये देखो वही, और देखो हैलोवीन का क्या प्रिपरेशन चल रहा है यहाँ पे। कल हैलोवीन है। इट विल लुक क्वाइट डिफरेंट एट नाइट with so many lights, no? In the night and Yeah. in the afternoon, it's more lighter than like this. Yeah. It's lighter than. Any significance of Hangman Street? Like, Yeah, they often selling like this, and it makes this street always light. okay. Yeah, So ये मतलब क्या होता है ना, फेस्टिवल जब भी आते हैं ना, जैसे अपना दिवाली होता है तो, और कोई भी फेस्टिवल होता है, ये स्ट्रीट हमेशा सजा हुआ रहता है। कोई भी फेस्टिवल है या फिर कोई भी छोटा मोटा जो जैसे हैलोवीन आ रहा है, तो ये स्ट्रीट हमेशा सजा हुआ रहता है, उसका ये कहना है। तो ये बता रही है जो स्टेट फेस्टिवल होता है ना, यहाँ पे लोग 4-5 दिन कुछ काम मतलब रेस्ट करते हैं, अपने अपने फैमिली को मिलने जाते हैं। तो ड्यूरिंग दैट ये स्ट्रीट हमेशा सजा हुआ रहता है। और स्टेट फेस्टिवल बहुत वियतनामीज में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। it's one day for the Vietnamese people can come on home, Okay. come back to the hometown, and I have enjoyed the meal, Okay. the first day of the year together. Okay. It's very special with Vietnamese people. ओके सो ये बता रही है जैसे अपना दिवाली में कैसे होता है, अपने सब घर जाते हैं, मतलब साल में एक बार ही तो मिलता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, खा पाए। और यहाँ पे वियतनाम में टेथ में जाते हैं, मतलब चाहे कुछ भी हो, एक बार कहीं भी रहेंगे वो अपने टेथ फेस्टिवल में विजिट करेंगे। इसलिए अगर आप ड्यूरिंग दैट जनवरी में आओगे फर्स्ट वीक में, तो काफ़ी रश मिलने वाला आपको विद रिगार्ड टू एवरीथिंग। मतलब बसेस के लिए तो काफ़ी प्राइस शूट अप कर जाएगी बिकॉज ऑफ स्टेट फेस्टिवल। तो ये आप ध्यान रखना, अगर आप जनवरी में आ रहे हो तो अवॉइड ही करना, दिसंबर में आ जाओ फर्स्ट वीक में, और या फिर नवंबर में, जैसे मैं बताया। जो आप लैम्प देख रहे हो ना, ये टेट फेस्टिवल के लिए यूज़ होता है, तो ये अभी से लगा दिए है। तो ये देखो क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, मतलब मोस्टली नॉन वेज है, ओनली स्ट्रीट फूड मिलता है यहाँ पे। तो ये देखो सब खा रहे हैं अपने मज़े से, नूडल्स है। ये देखो नैनी सूप डाल रही है, मतलब जो इनके नूडल्स रहते हैं ना वो राइस में रहते हैं। It's
355 and 50. ये ट्रेडिशनल वियतनामीज स्पाइसेस है यहाँ पे, अलग अलग टाइप के स्पाइसेस आपको मिल जाएंगे। ये शॉप है, यहाँ पूरा शॉप है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल है यहाँ पे स्पाइसेस का। तो हल्दी, ये हल्दी है और ये पैकेट्स में डाल रहे हैं। इट्स मैंगो। ओके, ये देखो कच्चा आम है और इसमें स्पाइसेस डाला हुआ है, मिर्ची हुआ जो रेड चिलीज होता है और वो खाया जाता है। फिर वो काफ़ी टेस्टी लगता है इनको खाने में। वियतनाम में मुझे अभी तक तो एक भी बाइक नहीं दिखा। यहाँ पे मोस्टली जो चलाते हैं स्कूटी चलाते हैं और टन्स ऑफ स्कूटीज़ है, मतलब हर आदमी के पास एक या दो स्कूटी होगा। बाइक तो मुझे अभी तक दिखा नहीं है, मे बी मैं एक सिटी में, इसीलिए हाईवे में तो दिख सकता है। बट देखो, अगर आप देखोगे सबके पास स्कूटी है। देखो वो भी एक लेडी लेके आ रही है, वो स्कूटी है। और ये एक लोकल मार्केट है इनका, ये बता रही है। यहाँ देखो जैसे अपना हाट होता है ना, हाट लगता है, वो ऐसा है। देखो तरह तरह के वेजेस मिल जाएंगे आपको, सब ग्रीन वेजिटेबल्स है। जैसे अपना लोकल सब्जी मंडी लगता है ना, एकदम वैसे ही है। हर टाइप के ग्रीन लीव्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। देखो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एग्स है यहाँ पे। ये देखो फ्रूट्स के वेराइटीज है और ये फ्रूट सेल कर रही है। देखो वियतनामी है, ट्रेडिशनल। कच्चा आम अभी भी मिल रहा है यहाँ पे। सेब है, ये मैंगो है। थैंक यू सो मच। Yes, okay. मैंने इंडिया से कुछ चॉकलेट लेके आया था, उसे दिया है। Yeah. सो इट्स इंडियन रुपीज़। मैंने कुछ सुवेनियर, तो मैं खरीदने का टाइम नहीं मिला था, सो एज अ सुवेनियर मैंने इसे एक करेंसी नोट दे दिया। तो अभी मैं ट्रेन स्ट्रीट आया हूँ हनोई का, और अभी यहाँ से ट्रेन आने वाला है। तो लकीली मैं जैसे ही आया और वैसे ही पता चला कि ट्रेन आने वाला है। मैं टाइम टेबल एक पिक लगा दूंगा, आप देख लेना कब आना है आपको। टाइम टेबल दिया हुआ है ट्रेन का, तो अभी ट्रेन आने वाले मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब सिमिलर टू मैकलोंग जो थाईलैंड में है ना, मैकलोंग जो बैंकॉक से अराउंड 2 आवर्स लगता है, तो सेम वैसे ही है। रिस्की तो है नो डाउट, बट मज़ा आता है। इसलिए अगर आप आ रहे हो तो मतलब थोड़ा हल्का रिस्की है ये, तो देख के आना कि आपको आना है कि नहीं। सो ये इनका घर है। तो अभी मेरे लिए कुछ नूडल्स बना रहे हैं, वेजिटेरियन नूडल्स है। तो ऐसा टिपिकल घर होता है वियतनाम का। देखो ये ड्राइंग रूम है, ऊपर इन लोगों का काफ़ी कोजी सा रूम होता है, छोटा छोटा रूम होता है। और ये किचन है इनका, और इसके बाद ये टॉयलेट और ये इनका घर। और देखो भाई, ये जो स्ट्रीट था सुबह, अब कुछ ऐसा लगता है। मजा, रौनक क्या सब चीज़ आ गया है यार ये स्ट्रीट पे। और अच्छा है, मतलब खाने पीने का ये मुझसे जो नॉनवेज लवर है उसके लिए तो काफ़ी अच्छा है। और वीगन फूड है, उनको चाय रेस्टोरेंट खोजना पड़ेगा, चाय मतलब वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। अभी मैं जा रहा हूँ ATM, इधर थोड़ा कैश विड्रॉल करने न्यू कार्ड से ही। देखो जिनको लगता है कि वीगन फूड या वेजिटेरियन फूड नहीं मिल सकता, तो ये देखो रेस्टोरेंट है, केवल वेजिटेरियन और वीगन फूड यहाँ पे मिलता है। यहाँ देखो ये कोई गेम है, मतलब वो वियतनामीज कोई गेम है, वो खेल रहे हैं। कैरम है, छोटा कैरम, लेकिन कैरम नहीं है। आराम से इंजॉय कर रहे हैं और गेम खेल रहे हैं अपना। Tour for the one day, we don't make the cruise in star. We just do it in regular package or deluxe package and luxury package. And then I will show you the pictures of the cruise and then show you the difference between them. And then you can make a decision. तो गाइस, जैसे कि अभी आपने सुना कि उसने बताया कि मतलब टूर कर ही लेना यहाँ पे आके, मतलब इंडिया से आके मत करना कुछ, यहाँ सब अरेंज हो जाएगा और काफ़ी सही प्राइस देंगे इन लोग। और ये जो मैंने जिससे कराया मैंने 2-3 जगह थोड़ा इंक्वायरी किया,
बट इसका ये जो बता रही थी एकदम सही सच बताई, बोली ऐसा कुछ नहीं होता कि 3 स्टार 4 स्टार है। अगर आप 2 डेज़ 3 डेज़ करते हो तो एक हाइडअवे बोल के एक वो क्रूज़ कंपनी है, वो कराता है अच्छा से क्रूजिंग। और ये जो सिंगल डे में अगर आप कराओगे तो ये आपका पॉइंट सब कवर करा देगा हलॉन्ग बे में। नॉर्मल सा रहेगा, डे टूर रहेगा। और हाइडअवे से आप कराओगे तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, और लेकिन उसमें क्या आपका 2 डेज़ और 1 नाइट रहेगा। जैसे इसने बताया कि यहाँ के कर लो, अगर आप सोचोगे कि मैं यहाँ से हनोई से हलॉन्ग बे जाऊँगा, वहाँ जाके बोट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो इससे बेटर है यहाँ बुकिंग कर लो और न्यू कार्ड या फिर अगर आप करेंसी लैब पेमेंट करके, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है।